Hello everyone. In this video, I will be talking about a sitting arrangement and the various type of sum based on it, and the way we'll also discuss the different techniques so that you can easily solve in the aptitude exam. So basically, in aptitude exam, we get three sections. The first section is the maths or the quant section. The second section is second section deals with all the reasonings based sums, and the third section deals with the English section. So seating arrangement is from the reasoning section. So basically seating arrangement three types के सम आ सकते हैं. The first one is linear arrangement, the second one is circular arrangement, and the third one is quadrilateral arrangement. So basically इस वीडियो में हम linear arrangement के बारे में बात करेंगे. So first of all let us understand linear arrangement क्या होता है. तो if you have given 6% and you have been asked to arrange them, and अगर आपने उन सभी 6% को एक straight line में arrange किया, we have person 1 2 3 4 5 and 6. So if you arrange them in a straight line or a row, it is called as a linear arrangement. ठीक है. अब linear arrangement में सबसे important point क्या होता है कि we have to understand a direction. Like if a person is facing towards a north direction, so उसका left क्या आएगा, उसका right कहाँ आएगा. If a person is facing a right in the east direction, so उसका left कौन सा साइड आएगा and right कौन सा साइड आएगा. एंड लीनियर अरेंजमेंट में क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ कि इफ देयर आर 6% फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, सो हमें ये डिसाइड सो अब हमें जब उनको अरेंज करेंगे हम, तो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि इफ पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो उनका लेफ्ट कौन सा साइड आता है एंड राइट कौन सा साइड आता है. सो द बेस्ट वे टू लाइक सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट इज टू अज्यूम आंसर इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. सो जस्ट टू गिव यू नॉलेज अबाउट द डायरेक्शन, सो we have the direction as north, south and east, west. ठीक है. So अब आपको सिंप्लीफाई वे में बताता हूं कि if a person is facing towards north, ठीक है, ये पर्सन है. ठीक है. let me teach you through this. So the arrow represent the position of person. So अगर person arrow भी north face कर रहा है, so we have the left towards our left and right towards our right. ठीक है. अब if a person is facing towards south, ठीक है, position of person, तो north का उल्टा हो जाएगा. उसका our left will be right and our right will be left to the person facing south. ठीक है. अब ये arrow साउथ की तरफ फेस कर रहा है. ठीक है. So the right will be here and the left will be here. Let's now see if the person is facing east. So if the person is facing east, we have the arrow pointing towards the position of the person. So we have left in upward direction and right in downward direction. ठीक है. Now if the person is facing towards west, again we use this arrow. So this indicates the position of person. So we have the arrow facing towards left. So right will be in upward position and the left will be in downward position, just opposite to east. So इस टाइप के पर्टिकुलर सम सॉल्व करने में हमें ये सभी को याद रखना पड़ेगा कि लेफ्ट एंड राइट कौन सा साइड आएगा इफ द पर्सन इज फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है. नाउ लेट्स सी द स्टेप्स वी विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट. सो ये बेसिकली 4 स्टेप हमारे टाइप ऑफ सम इंक्लूडेड इन सीटिंग अरेंजमेंट में ये सारे स्टेप्स यूज करेंगे. सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर नेम्स. सबसे पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जानना है और उनका नाम जानना है ताकि हम कुछ गलती ना करें एंड वी गेट द रॉन्ग आंसर. द सेकेंड इज यूज अ पिक्टोरियल मेथड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एंड देयर पोजिशन. सो पिक्टोरियल मेथड मतलब क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन हम लाइन के थ्रू या सर्कल के थ्रू या क्वाड्रिलेटरल के थ्रू डिनोट करेंगे तो हम उसे पिक्टोरियल मेथड बोलते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि इफ वी हैव 6% एंड वी अरेंज देम इन अ लाइन, सो हमने इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे मतलब लाइन में डिनोट किया. ठीक है. तो सेकंड स्टेप इज यूज अ पिक्टोरियल मेथड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एंड द पोजिशन. द थर्ड वन इज फिल्टर द इंफॉर्मेशन टू कम अप विद द रेलेवेंट फैक्ट्स अबाउट अदर पोजिशंस एंड ट्राई टू कम अप विद अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है. फिल्टर द इंफॉर्मेशन मतलब क्या, अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सीटिंग अरेंजमेंट में हमें बहुत सारे क्वेश्चन में क्लूज दिए होते हैं. सो हम एक क्लू यूज करेंगे तो उसको एलिमिनेट कर देंगे. सो फिल्टर द इंफॉर्मेशन मतलब एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस या एलिमिनेटिंग द क्यूज एंड
एक ऐसे पॉइंट में पहुंचेंगे जहां पे हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, लाइक दैट विल बी आंसर। फिर आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट डिटरमाइन अबाउ। तो बहुत सारे केसेस में एक सिनेरियो दिया होता है और उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन होते हैं। सो वो जो हमें यूनिक सोल्यूशन मिला उसको आइडेंटिफाई करके हम वो सभी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस 4 स्टेप्स विल द बेसिक स्टेप्स वी विल यूज इन ऑल द टाइप। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें हमारे माइंड में रखना है जब भी वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन इन अ गो एंड देन ट्राई टू ब्रेक इट इनटू बिट्स एंड पीसेस, ठीक है। सबसे पहले कि हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, देन हम उसमें से क्लूज लिख के क्यूज को निकाल के एक एक पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट विद दोस लाइन्स दैट कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम क्लूज सॉल्व द क्वेश्चन। अभी हमें कुछ पता नहीं है क्वेश्चन के, लाइक क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब जैसे ही वी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, सो द फ्रॉम द लाइन वी गेट द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लू जो लाइन से हमें मिल रहा है, वी विल यूज दैट पर्टिकुलर लाइन। सबसे स्ट्रॉन्ग जो लाइन हमें क्लू देगा तो हम सबसे पहले वही वाला पर्टिकुलर लाइन यूज करेंगे हमारे आंसर में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। Let's see the next point. Try to find the possible causes and try to eliminate every point one by one. जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला कि we filter the information, that is eliminate the option after using it. So third important point वही है कि once you use the clue, eliminate that particular option. Now let's see the question. So let's start with a very basic question and the standard method or the आप यही करोगे, ट्रिक यही है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि रीड द सेंटेंस, राइट दैट पर्टिकुलर क्लू, देन गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, उससे जो क्लू मिल रहा है वो लिखो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, दे आर ABCDENF। सो हमें मालूम पड़ गया कि 6 पर्सन है और उनके नाम ABCDENF है। C इज नॉट सिटिंग बिसाइड D, ठीक है। सो पहला क्लू हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट क्लू हमें क्या मिलेगा, C इज नॉट सिटिंग बिसाइड D, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करो C, या तो फिर बेटर वे है कि C इज नॉट सिटिंग बिसाइड D, ठीक है। नाउ सेकेंड क्लू अब क्या मिल रहा है हमें, C इज नॉट सिटिंग बिसाइड D, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। अब D हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट हमें यहां से स्ट्रॉन्ग क्लू मिल गया, ठीक है। सो इफ वी हैव दिस नंबर लाइन तो वी हैव D एट द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। थर्ड, एंड इस क्वेश्चन में वो बताया नहीं कि कौन से डायरेक्शन में फेस किया, तो बाय डिफॉल्ट वी कैन अज्यूम दैट द पर्सन आर फेसिंग इन द राइट, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सो एज पर दैट अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है सो वी हैव लेफ्ट टूवर्ड्स आवर लेफ्ट एंड राइट टूवर्ड्स आवर राइट, ठीक है। नाउ let's see the next clue. E is between A and C, ठीक है। So A C in between, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, E in between A का पोजीशन विल कम इन प्लेस ऑफ C, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A is not sitting beside B and D। फोर्थ क्लू हमें क्या मिला, A is not sitting beside F and D, ठीक है। सो ए का पोजीशन एफ के बी साइड भी नहीं आएगा एंड ए का पोजीशन डी के बी साइड भी नहीं आएगा। सो देखो मैं किस टाइप से क्लूज को लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, सो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, एफ और डी का पोजिशन इंटरचेंज, ठीक है। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, सॉरी ए, सो हमें इमीडिएट राइट ऑफ ए ढूंढना है। सो हमने सभी क्लूज लिख लिया। You can go through the question once more so that you don't miss any of the clue, ठीक है। अब हमारे पास क्लू है सब, तो वी स्टार्ट मेकिंग द पिक्टोरियल व्यू। सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू हमें बस ये था, सेकेंड वाला, दैट इज डी इज द एक्सट्रीम राइट, सो वी हैव डी। इसको एलिमिनेट कर दे ऑप्शन को। नाउ अब हम देखेंगे कि डी से रिलेटेड हमें और कौन से ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। सो हमें ऑप्शन क्लू 5 मिला और क्लू 1 है, बट क्लू 5 इज मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज वहां पे क्या बोला है, बी इज इन बिटवीन एफ एंड डी, ठीक है। अब डी एक्सट्रीम राइट पे, तो डी के बाद तो कुछ आएगा नहीं,
ठीक है। सो एफ का पोजीशन यहाँ पे हो गया एंड बी का पोजीशन यहाँ पे हो गया, क्योंकि बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है लोग ने, अभी बी एफ बी या डी किसी भी रिलेटेड हम क्लू ले सकते हैं। सो अब फोर्थ क्या है कि ए, नाउ वी हैव 3 मोर पोजीशंस, राइट। अभी फोर्थ क्लू क्या है कि ए इमीडिएट नेबर नहीं है ए का, एफ का, सॉरी, ठीक है, और डी का भी नहीं है, तो डी का तो कोई लाइक क्वेश्चन ही नहीं है, तो ए का पोजीशन यहाँ पे नहीं आएगा। सो ए का पोजीशन यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। बट अब हम उसके ऊपर वाला क्लू देखेंगे। सो उसमें क्या बोला गया है कि ई इज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। सो अगर ए का पोजीशन हमने फर्स्ट पोजीशन लिया, सो वी हैव ए, देन वी विल हैव ई एंड सी हियर, राइट। और अगर हमने ये पोजीशन लिया, सो वी वोंट हैव सी एज इन बिटवीन ई एज इन बिटवीन ए एंड सी। लाइक अगर ए का पोजीशन यहाँ हो गया, सो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए की कोई नंबर आएगा, अगर ई लिया तो सी आएगा नहीं। सो बाय डिफॉल्ट वी टेक द पोजीशन, लाइक हमारे पास यही ऑप्शन है कि ए का पोजीशन ये हो गया एंड वी हैव सी हियर एंड ई इन बिटवीन देम, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ए एफ का नेबर नहीं हो रहा है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड फर्स्ट इज सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सो यू कैन सी कि डी का इमीडिएट नेबर बी है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑल क्लूज यूज्ड, वी हैव द पिक्टोरियल व्यू। नाउ लेट्स फाइंड द आंसर, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए। सो ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सो वी हैव लेफ्ट एंड राइट। इमीडिएट राइट मतलब जस्ट बाजू में, एडजेसेंट टू ए, सो ई है इस केस में, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 5 boys are standing in a row facing east, ठीक है। अब फेसिंग ईस्ट बोला है, सो अगर ईस्ट में डायरेक्शन में कर फेस किया है, दैट इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में है, सो वी हैव लेफ्ट ऊपर एंड राइट नीचे, ठीक है। सो लेट्स राइट द हिंट फर्स्ट। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चौवन, ठीक है। पवन इज द लेफ्ट ऑफ पवन, वी हैव हियर लेफ्ट, we have like it can be Tavan for T, Vipin for V and Chavan for C, right? Tavan, Vipin and Chavan are to the left of Nakul, ठीक है। अब सेकेंड क्लू क्या करता है, you can write in this way or we can use the number line now, like the line, the linear method to solve this. So we have 1 2 3 4 and 5, ठीक है। वी हैव द लेफ्ट ईयर एंड वी हैव द राइट ईयर अकॉर्डिंग टू दिस। अब पहला क्या बोल रहा है कि पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन, ठीक है। तो पवन का अभी 3 लोग है, तो 1 2 3, सो पवन यहाँ पे हो सकता है या तो फिर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि टी वी एंड सी, दैट इज तवन, विपिन एंड चवन विल बी टू द लेफ्ट, लाइक पवन इज टू द लेफ्ट, सो ऑफ तवन, तो तवन के लेफ्ट में पवन है, तो तवन पोजीशन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ठीक है। सो अब सेकेंड क्या बोल रहा है, वी हैव तवन, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, तो नकुल राइट में हो गया, राइट। सो अब नकुल को अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, नकुल का पोजीशन ये हो सकता है या तो ये पोजीशन हो सकता है, क्योंकि 3 मेंबर्स है उसके ऊपर, राइट। तो अगर सेकंड पोजीशन यहाँ पे हमने लिया तो 3 मेंबर्स नहीं आ पाएंगे इधर ऊपर, क्योंकि पवन ऑलरेडी 2 में से कोई एक पोजीशन में आने वाला है। सो वी हैव द पोजीशन फॉर नकुल एज हियर। नाउ इफ विपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। विपिन क्या है, 4th फ्रॉम लेफ्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग टिप हमें यहाँ पे मिल गया, तो लेफ्ट यहाँ पे है, सो वी हैव 1 2 3 and 4. So Vipin is 4 from the left. Then how far is Tavan from the right? ठीक है। अब हमारे पास कौन बचा, तवन, पवन एंड चवन। सो वी हैव बाय डिफॉल्ट पवन का पोजीशन ये हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अज्यूम करेंगे तो हमारे पास 3 स्पॉट्स एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सो अब वी हैव पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, तो तवन यहाँ पे आ जाएगा एंड विपिन एंड चवन है, ठीक है। तो चवन विल बी हियर। तवन एंड चवन का पोजीशन हमें मैटर, पवन यहाँ पे आ गया, सॉरी पवन फर्स्ट पोजीशन में आ गया, तवन वी हैव, देन वी हैव चवन एंड देन विपिन एंड देन नकुल,
ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन हाउ फार इज 7 फ्रॉम द राइट। सो यहां से कितना दूर है, तो वी आर 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर क्वेश्चन इजी है यू कैन डायरेक्टली represent without writing the clue, but best practice is to write the clue first then move for the question. ठीक है, let's see the next question now. 8% A, B, C, D, E, F and G and H are sitting in two rows opposite to each other. ठीक है, अब opposite to each other तो समझो हमने for example ये दो लिया, तो person sitting in this row will face south and person sitting in this row will face north. ठीक है, how each row has 4%. ठीक है, तो we have 1 2 3 4 4%, 1 2 3 4. B and C are sitting in front of each other. ठीक है, so let me make the actual pictorial view here. So B and C are, first clue is B and C are sitting in front of each other. So B ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, C भी ऊपर या नीचे हो सकता है, इसलिए मैं डबल एरो से रिप्रेजेंट किया हूं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, C इज इन बिटवीन D एंड E। ठीक है, सेकेंड क्या मिला, C इज इन बिटवीन D एंड E। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो गया एंड एक ही पॉसिबिलिटी हो गया। और इससे हमें एक और चीज क्लियर हुआ कि D, C, E ये तीनों भी एक ही लाइन में आने वाले हैं। ठीक है, या तो ऊपर के लाइन में तीनों आएंगे तो नीचे के लाइन में तीनों आएंगे। अब क्या बोला है, H इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। थर्ड क्या मिला, F इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। ठीक है, सो E के लेफ्ट में H है, राइट, H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। अगर E इज ऑन दिस लाइन एंड अगर साउथ में है तो उल्टा हो जाएगा, E के ये साइड लेफ्ट हो जाएगा, तो H विल बी हियर। ठीक है, H एंड F आर डायगोनली ऑपोजिट। डायगोनली ऑपोजिट मतलब इफ यू हैव 4 मेंबर्स, सो द फर्स्ट मेंबर हियर एंड द लास्ट मेंबर हियर, दे विल बी डायगोनली ऑपोजिट। ठीक है, सो द फोर्थ विल बी H and F are diagonally opposite. G and B are not near to each other. मतलब fifth clue we have G and B immediate neighbors नहीं है। ठीक है, Who is in front of A। ठीक है, अब हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू क्या था, थर्ड वाला था, जो कि बोल रहा है कि H and E are immediate neighbors या immediate left of E। ठीक है, सो हम sorry, H is sitting immediate left, so let us assume E का position to be downwards here। ठीक है, we have 4 members down and 4 members up। अब E का position determine करते हैं पहले। so we have D C E। second clue क्या बोल रहा है कि C is between D and E। ठीक है, तो H का position या तो ये होगा या तो इधर या तो इधर, ये 3 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, E का पोजीशन यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि H फिर लेफ्ट पे नहीं आएगा। वी हैव D C E और E C D, सो लेट अस अज्यूम E का पोजीशन यहां पे है एंड फिर अकॉर्डिंग टू दिस H का पोजीशन ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि द सेकेंड क्लू C इज बिटवीन D एंड E, सो वी हैव C इन बिटवीन D एंड E। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड क्योंकि और कोई पॉसिबल वे है ही नहीं फिल करने का। अगर हमने E का पोजीशन यहाँ पे लिया, वी हैव इमीडिएट लेफ्ट में H एंड C इन बिटवीन D एंड E, क्योंकि 4 ही पोजीशंस है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है बोल रहा है, फोर्थ क्लू H एंड F आर डायगोनली अपोजिट। सो H यहाँ पे तो फर्स्ट मेंबर है, तो F विल बी द लास्ट मेंबर हियर। ठीक है, नाउ तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब फर्स्ट क्लू क्या है, C एंड B आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वी हैव B हियर। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। Now we have the last option that B and G neighbor are not near to each other, मतलब neighbor नहीं है तो G यहाँ पे नहीं आ पाएगा, so G will be here। ठीक है, so we have A here। Now we have the number lines, all clues are used, कोई भी क्लू छूटा नहीं है। So let's see the question, who is in front of A। A के ऑपोजिट कौन है, तो E है इस केस में, so option will be option A, that is E। ठीक है, I hope you are understanding and अब आपको समझ रहे कि हाउ टू यूज क्लू एंड हाउ टू एलिमिनेट देम। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A B C D E F and G are seated in a straight line facing north। अब बता दिया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, सो वी हैव लेफ्ट ईयर एंड राइट ईयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स है।
let's start writing the option. C sits 4 to the left of G. ठीक है, लेफ्ट ऑफ G मतलब ये साइड आ गया अपना अपना लेफ्ट. C फोर्थ पोजीशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड वी हैव अ C. ठीक है, सेकेंड क्लू क्या बोल रहा है? D sits सेकेंड टू द राइट ऑफ G. ठीक है, वी हैव D G and D sits second. So first and second. ठीक है, only two people sit between D and A. Two people between D and A. ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, B and F are immediate neighbors. अब बताया नहीं कि कौन सा इमीडिएट लेफ्ट नेबर है या राइट नेबर है. सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. B and F and F and B भी एक पॉसिबिलिटी है. B is not immediate neighbor of A. फिफ्थ क्लू क्या मिल रहा है? B is not immediate neighbor of A. ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है. H is not an immediate neighbor of D. Last clue is H is not immediate neighbor of D. So ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि एक सिनेरियो दिया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उस पर बेस्ड. सो ये उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सो लेट फर्स्ट फॉर्म द like the linear arrangement for this. So first we have, let's make a line. We have 8%, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू क्या है कि फर्स्ट क्लू देखते हैं. C sits 4 to the left of G. ठीक है, सो G का पोजीशन यहां पे आ सकता है. G can be here 1 2 3 4. G can be here 1 2 3 4 and lastly G यहां हो सकता है. ठीक है, अब क्या बोला है कि सो G और D के बीच में कोई एक ही एलिमेंट है. ठीक है, सो अगर अभी G को मैं यहां पे लिया ये पोजीशन में और D को मैंने यहां पे लिया. ठीक है, सो देयर विल बी टू एलिमेंट बिटवीन A. तो A का पोजीशन यहां पे हो जाएगा. दिस विल बी द A का पोजीशन एंड D से क्या H इमीडिएट नेबर नहीं होगा. ठीक है, तो वी कैन हैव अ H हियर. सो लेट अस नाउ अज्यूम कि G का पोजीशन ये लिए. ठीक है, एंड D का पोजीशन वी टेक दिस वन, राइट, एंड वी हैव अ सिंगल पर्सन बिटवीन G एंड D. इसके लिए हमने एक स्पेस छोड़ा. अब फर्स्ट क्लू क्या बोलता है कि C is 4 to the left. सो वी हैव 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो ये क्लू हमने यूज कर लिया है. अब क्या क्लू है कि अभी हमारे पास ये वाला क्लू है कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन D एंड A. सो D हमारे पास यहां आ गया तो 1 2. सो A का पोजीशन यहां पे हो जाएगा, राइट. सो ये ऑप्शन भी क्लू भी एलिमिनेट हो गया. अब वी हैव B and F are not immediate, sorry, B and F are immediate neighbors. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये दो पोजीशन ही खाली है. वी कैन नॉट हैव B and F here बिकॉज फिर दोनों इमीडिएट नेबर नहीं हो पाएंगे. सो बाय डिफॉल्ट वी हैव दिस B and F here. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वी कैन हैव B बट F फिर इमीडिएट नेबर नहीं होगा. एंड फिर वी हैव द लास्ट ऑप्शन, तो H बचा है हमारे पास, तो वी राइट अ H here. नाउ लेट्स सी, H और D इमीडिएट नेबर नहीं हो रहे. सॉरी, वी हैव E ऑल्सो. E से रिलेटेड भी D और H इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो H यहाँ पे नहीं आएगा, H यहाँ पे आएगा. सो वी हैव अ E हियर बिकॉज H इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ D. ठीक है, लास्ट हिंट था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. और अभी A और B दोनों भी इमीडिएट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड F और B वी यूज द क्लू, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. Okay, so the first question is, who amongst the following sits exactly in the middle of person who sit fifth from the left and the person who sits sixth from the right. ठीक है, so we have left here and right here. So we need fifth from the left. So we have 1 2 3 4 and 5 and 6 from the right. So we have 1 2 3 4. This is the first position. 4 5 and 6. This. So we have F as in between, right? So the option D is the correct option. Who among the following sits third to the right of C? So we have right in this direction, we have C here. So हमें इस डायरेक्शन में जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 8.
हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड, तो थर्ड पे ए है तो सी विल बी द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। टू एक्सट्रीम एंड्स मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, सो वी हैव एच एंड डी, ठीक है, और डी ऑन एच, ठीक है। डी एच या फिर क्योंकि बोला नहीं है एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट कौन सा पहला चाहिए, तो वी कैन हैव एच डी और डी एच, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ। थर्ड टू द लेफ्ट, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू द राइट, फोर्थ टू द लेफ्ट। इमीडिएट पोजीशन ऑफ एच जानना है। अब एच हमारे पास फर्स्ट पे है, ठीक है, तो अब ऑप्शंस क्या है, थर्ड टू द रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट नहीं है, वी आर मूविंग ईयर, तो ये थर्ड टू द राइट हो गया, तो ये नहीं है। इमीडिएट राइट, एफ इमीडिएट राइट नहीं है। सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा चाहिए हमें, रिस्पेक्ट टू एफ, पोजिशन ऑफ एच which with respect to f, right? So we have 1 2 3, so it will be third to the left, so option A. How many persons are seated between A and E? So we have A here and E here, so we have only one person, that is G, so the option will be option A. So basically इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिकली आपको मिलेगा एक सिनेरियो और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, और लाइक दरअसल दो एक सिनेरियो इन दो क्वेश्चन बेस मिल सकते हैं, बट जनरली इन एप्टीट्यूड दे आस्क अ सिनेरियो इन वन क्वेश्चन ईच। मैं लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव वन सिनेरियो एंड देन मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, सो लेट्स सी। 8 persons P, M, R, T, Q, U, V and W, so we have the total number of quantities as 8 and the names are P, M, R, T, Q, U, V and W are sitting in front of one another in 2 rows, ठीक है। We have 2 rows again, so this will face south and this will face north. Each row has 4 person, again बता दिया 4 person है, 3 4 1 2 3 4। P is between U and V, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, P is between U and V, एक ही पॉसिबिलिटी हो गया, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हिंट देखते हैं, अब सेकेंड क्लू क्या है, एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब फेसिंग नॉर्थ बोल दिया है तो लेफ्ट होता है हमारा, मतलब एक्चुअल लेफ्ट इज टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, सो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये एक ही ऑप्शन हमारे पास। Q who is to the immediate left of M is facing W, ठीक है। अब हमारे पास UPV हमें नॉर्थ में फेस कर हमें मालूम पड़ेगा, सो वी हैव ओनली वन स्पेस एम्प्टी, सो Q हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, सो यहाँ पे M और Q दो क्वांटिटीज आ गए, तो हमें पता चल गया कि अभी सेकेंड ऑप्शन में Q एंड M आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ मतलब वी हैव उल्टा ऑफ नॉर्थ, सो अगर क्वेश्चन में बोला है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, सो M विल बी टूवर्ड्स द राइट ऑफ Q, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट क्या है, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी हो गए Q के लिए, इज फेसिंग W, सॉरी हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, तो Q के अपोजिट W आ गया। द पोजिशन ऑफ M विल बी एनी वन ऑफ दिस, ठीक है। R is between T and M. R is third is between T and M, एक पॉसिबिलिटी होगा, और एक और पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। एंड W is to immediate right of V, V के immediate right W हो गया फोर्थ, ठीक है। लेट्स नाउ ड्रॉ, सो वी हैव 1 2 3 4 in one row, 1 2 3 4 in another row, ठीक है। अब वी नो दैट V के इमीडिएट राइट में W है, एंड वी ऑल्सो हैव द हिंट वन वेर इन वी हैव U P इन बिटवीन U एंड V, सो अगर V का पोजिशन यहाँ पे रखा तो वी कैन नॉट हैव दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सेटिस्फाइड, सो वी प्लेस दिस ऑप्शन हियर, वी हैव V हियर, ठीक है। अब इसके इमीडिएट राइट पे हमारे पास W है, फेस नॉर्थ कर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। नाउ वी हैव P इन बिटवीन U एंड V, सो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या बोला ये लोग ने, लेट्स सी द क्वेश्चन दिस।
clue. So we have Q to who is immediate left of M. ठीक है, and we also have T. T R is between T and M. So let's use this particular clue. So we have Q who is immediate left of M. So Q लेफ्ट के इमीडिएट Q M के इमीडिएट लेफ्ट में है. So we have Q and M. Let's go by this option. And क्वेश्चन में क्या बोला है कि R is between T and M. अब मैंने M का पोजीशन यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे लेता फिर Q के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो पाता. सो नाउ वी हैव R here and T here. ठीक है, हमारा बन गया डायग्राम. ऑल ऑप्शन ये हमने यूज किया TRM वाला क्लू, और सेकेंड वाला भी यूज कर लिया इमीडिएट लेफ्ट वाला. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R. R के फ्रंट कौन बैठा है, P. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन D. सेकेंड, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R. R यहाँ पे है. ठीक है, अभी इट इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, तो R left will be immediate right. We have right here, left here, and for north we have left and right. So T is immediate right of R. So यहाँ पे भी हमारे पास T का ऑप्शन नहीं, M और T है, बट वी नो T ही है आंसर, तो ऑप्शन D नन ऑफ दिस रहेगा. अगर E ऑप्शन होता T तो दैट विल बी द आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. अपोजिट टू ईच अदर फाइंड करना है. सो ऑप्शन M और V है, यस दे आर सिटिंग. R और V नो, R एंड P है ऑपोजिट में. T एंड U है ऑपोजिट में, एंड U एंड R नो, R एंड P एंड T एंड U. तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप आपको लीनियर अरेंजमेंट का सम कैसे सॉल्व करना है समझ गया होगा. एंड दिस आर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दैट आई हैव गिवन ऑन द टाइप्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो ये सबको प्रैक्टिस करिए, एंड जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उतने सम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट के सम्स को सॉल्व करने में टाइम जाता है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन. एंड इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आंसर को आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि वी कैन वेरीफाई. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव थॉट, प्लीज like the video, share the video and subscribe to our channel. Thank you.